Why is it that even after joining good coaching, studying 6 to 8 hours of daily, most students still don't get rank they expect? Is it lack of intelligence? Or is it lack of effort? Why many students fail even after doing these things? I'll talk about a student who has studied 7 to 8 hours daily but still underperform. So keep watching till the end. That's very important. Greetings everyone. Today's topic is not just teaching any DPP or PYQ. It is entirely different topic and very interesting topic. IIT NEET aspirants fail despite coaching. And what top 1% students do differently so that they can succeed in this exam, right? चलिए शुरू करते हैं. I want to start with a simple question. Why is it that even after joining good coaching, studying 6 to 8 hours of daily, most students still don't get rank they expect? Is it lack of intelligence? Or is it lack of effort? No, it is none of them. Then what's actually going wrong? What is the problem? What is the key issue? I will show you today what is the key issue and why many students fail even after doing these things. By the end of the session, you will definitely understand how to study without backlog, okay, revise effectively and convert efforts into rank with all my experience. So keep watching till the end. That's very important. I'm Anuj Mishra from IIT Kanpur. I'm graduate from IIT Kanpur and I mentored thousands of IIT JEE aspirants across the years. I have almost 19 years of experience in teaching students for JEE preparation and NEET exams, right? My students have achieved rank like 2, 8, 27, even in NEET also toppers, top AIMS, top IITs. Many of my students are in US and other countries, Europe and top companies, right? So now, I've seen students who work hard but fail and those who follow the right system and succeed. So let us understand what is the system. I'll talk about a student who has studied 7 to 8 hours daily but still underperform. So you have to fix the system first and then results automatically improve. चलिए प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि प्रॉब्लम है किस तरीके से. सबसे पहली प्रॉब्लम है पैसिव स्टडिंग. देखो पैसिव स्टडिंग क्या होता है कि आप लेक्चर्स वॉच कर रहे होते, राइट, और बिना किसी एक्टिव प्रैक्टिस के आप जस्ट अपने लेक्चर्स देखते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, अच्छे नोट्स बनाते जा रहे हो, रीराइट करते जा रहे हो. दैट इज वन बेसिक प्रॉब्लम, इज पैसिव स्टडिंग. सेकेंड मेजर इशू इज नो रिविजन सिस्टम. आप एक चीज ध्यान से समझिए, कोई भी लेक्चर जो आप पढ़ते हो, अगर आप विद इन 24 आवर्स उसको रिव्यू करते हो तो आपका रिटेंशन काफी हाई होता है. ओके, विद इन अ वीक अगर आप रिव्यू करते हो तो रिटेंशन थोड़ा कम हो जाएगा. विद इन अ मंथ करोगे तो ऑलमोस्ट रिटेंशन ना के बराबर हो जाएगी, राइट? आपको लगेगा बिल्कुल मैं फ्रेश चीज पढ़ रहा हूँ. तो ये सबके साथ होता है, ये हम लोग के साथ भी होता था हमेशा, राइट? थर्ड थिंग इज बैकलॉग ट्रैप. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम. एक टॉपिक मिस हुआ, उसकी वजह से दूसरी चीज समझ में आना बंद हो गई, उसकी वजह से तीसरी चीज समझ में आना बंद हो गई, उसकी वजह से पूरा टॉपिक ही उड़ गया और उसकी वजह से फाइनली सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज होता चला गया. अंडरस्टैंड? तो चलिए समझते हैं 3 ऐसे चीजें जिनसे आप इनको रिकवर कर सकते हो, इस पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3C सिस्टम. नंबर 1 इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. अबिलिटी टू सॉल्व इंडिपेंडेंटली, राइट? आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए. डिपेंडेंसी ऑन टीचर, टॉपिक, सब्जेक्ट. इससे बेहतर है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे ट्रेन करो कि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो उसको रिकॉल कर सको. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक थर्मोडायनेमिक्स में एक डायग्राम पढ़ाता हूँ, SUV, VAT, SHP, PGT. आप एक बार नोट्स में जाके चेक करना, वीडियोस में मिल जाएगा आपको. उस डायग्राम से मैं हर एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन डिराइव कर सकता हूँ. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बेसिक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लाइक H is U plus PV, एवरीथिंग कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन, राइट? सो ऐसी चीजें आपको बहुत मदद करती है पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में. दूसरा, कंसिस्टेंट रिवीजन. आपकी रिवीजन साइकिल्स होनी चाहिए 24 आवर्स, 7 डेज, 21 डेज, ओके, एंड मंथली और वी कैन से लाइक 2 मंथ्स साइकिल. तो उस तरीके से आप रिव्यू करो अपनी चीजें. एंड थर्ड थिंग इज कंट्रोल्ड प्रैक्टिस. ओके, कंट्रोल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो बहुत से लोगों की आदत होती है अभी मैं सर ना अभी मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं एडवांस के लिए पढ़ूंगा. बिल्कुल गलत अप्रोच. इट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच. यू शुड कंप्लीट द टॉपिक फ्रॉम एंड टू एंड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम. ठीक है, तो आपको क्या करना है? टॉपिक शुरू करना है और उसके एडवांस लेवल तक पहुंचना है इन द गिवन टाइम फ्रेम. उसके लिए बार बार आपको आगे पीछे नहीं घूमना है, राइट? टॉप स्टूडेंट्स डोंट स्टडी मोर, दे फॉलो दिस बेटर सिस्टम. ओके, चलिए मैं कुछ प्रूफ बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये सक्सेस स्टोरीज वर्क करती भी है कि नहीं, राइट? सो आई हैव टॉट स्टूडेंट रैंक 2, रैंक 8
ओके, आयशा पारेख, केविन। सो इन सबके साथ एक कॉमन बात थी, इनको जो भी बताया जाता था वो बिल्कुल उसको अक्षरशः पालन करते थे। यानी आपको बोल दिया कि ये करना है तो ये करना है। देयर इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? देयर इज नो डिबेट आफ्टर दैट। Now coming to point number 6, which is very important, is what we are going to offer here. So I'm going to offer here Genius Lab mentorship program. Those who are interested in mentorship program, you can ping on my mobile phone number 8957922812, which will be in the description also, which will be in this videos, like towards the last end part also, right? End screen also. You can ping me on that, okay? And I'll take you through our mentorship program. It is not rank reducing program, it's a complete mentorship program where rank will be the outcome. Okay, so once you get a teacher who can guide you, who can mentor you, automatically results will keep on coming. So this YouTube program will be completely governed in that direction, right? This will include classes, planning, doubt solving, and mentorship, right? This is not just coaching, it's a guided transformation, okay, for all of you. वी विल नॉट हैव इनफ सीट्स, या बहुत सारी सीट्स मेरे को नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक बैच यूट्यूब का क्रिएट करना है, वो भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, राइट? तो वो नंबर जैसे ही कंप्लीट होगा हम ये प्रोसेस बंद कर देंगे। तो आपको अगर इंक्वायर करना है तो उसको आपको इमीडिएट बेसिस पे एसएप इंक्वायर करना होगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट इन माई हैंड, सो आई can spend only a limited amount of time for this particular one. So I don't want multiple batches, I just want one batch, and that too not very big batch, right? मेरे को 500-600 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाना है, बिकॉज मुझे आपको एक मेंटरशिप बेसिस पे काम करना है और आउटकम बेसिस पे काम करना है। I will definitely invite any of your questions. You can please put in the comments. I'll be happy to answer. Thank you in our mentorship program. Bye.